गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए 11th क्लास फिजिक्स के लिए कल हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिस्कस कर रहे थे 90 माइनस थीटा तक। इसके अलावा जो कल की क्लास थी उसमें हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके अप टू 90 डिग्री तक की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए अगर हम बात करें कि फिजिक्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स का ये 4th वीडियो है, जो फर्स्ट 2 वीडियो है उसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन कल से कुछ बच्चे नए हैं वो 11th क्लास के ग्रुप में जुड़े हैं, तो उनके रिवीजन के लिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। इसीलिए जो फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है उसी के लगभग सिमिलर है आपका 3rd और 4th वीडियो, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनके लिए वजह से क्या किया जा रहा है, ये वापस से रिशूट किया जा रहा है। तो देखिएगा, अगर हम कल की क्लास की बात करें तो हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने ग्राफिकल मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया था और उनकी वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट किया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो किस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक होती थी। सेकंड हमने लिखा था ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसकी वैल्यू 90 से और 180 डिग्री तक हम डिस्कस कर चुके थे। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसकी वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री भी हम यहाँ तक कर चुके थे। और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर अगेन 270 से लेके और 360 तक की वैल्यू हम असाइन कर चुके थे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दैट्स एग्जिस्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इफ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट, दैट फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री एंड थर्ड इज 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड फोर्थ इज 270 टू 360 डिग्री। क्लियर? एंड वी ऑल्सो डिस्कस दैट a famous terms A, S, T and C. Here A stands for all. That means in first quadrant all trigonometry functions are positive. That means in first quadrant all trigonometry functions are positive. Clear? And we also discussed that up to 90 degree चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो ऑलवेज कंसिस्ट एज ए पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? इफ वी डिस्कस अबाउट द एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल इज कोसेक थीटा, बोथ विल बी पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल बी नेगेटिव। एंड here T stands for tan theta, its reciprocal cot, both will be positive and all remaining trigonometry function will be negative. And last one is cos theta and that's reciprocal is sec theta will be positive and all remaining trigonometry function will be negative. And we also discussed that sin 90 minus theta, cos 90 minus theta is equal to sin 90 sin theta, tan 90 minus theta is equal to tan theta. These value we already discussed. Today our second class, that is 90 plus theta type. Second type is 90 plus theta. If we discuss about the quadrant, the 90 plus theta, these all value exist in the second quadrant. And we also know that when any trigonometry function intersect the vertical line, in other words we can say that if any trigonometry function intersect या hit या strike the y-axis, then it's always change its corresponding other trigonometry function. Clear? And we know that 90 plus theta, that means the value of any trigonometry function more than 90 degree is always exist in the second quadrant. Clear? Let us see
If we discuss sin 90 plus theta, that will be cos theta. Clear? Because due to 90, we know that if any trigonometric functions in form of 90 plus theta or 270 plus minus theta, in both cases, its value, it's the function of trigonometry change. Sin converted into cos. Similarly, cos converted into sin. So in second case we can say that it cos 90 plus theta, that will be sin theta. But here we observe that in second quadrant only sin theta and its reciprocal cosec theta, only two trigonometric functions are positive, all remaining trigonometric functions are negative. So cos will be negative in case of a second quadrant. Clear? Next, if we discuss about tan 90 plus theta, we know that tan 90, due to 90 it converted into cot theta, and we also know that in second quadrant tan also negative. Clear? If we discuss about cot 90 plus theta, that will be minus of tan theta, and sec 90 plus theta, that will be cosec theta, but it may be in negative. And last is cosec 90 plus theta, that will be sec theta. So we can say that in second quadrant only sin theta and cosec theta, both are positive. Only sin theta and cosec theta both consist positive value, and all remaining trigonometric functions like as cos, tan, cot and sec, they consist negative value. First of all, you observe that we select the initial trigonometry function not after changing, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम इनिशियल केस में शुरुआत में ले रहे हैं, चेंज होने के बाद नहीं। शुरू में देखिए साइन है, ये कोस तो कब हुआ है, जब ये 90 की वजह से चेंज हुआ है कोस के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब इनिशियल में साइन था, और साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें tan 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर देखिए 90 की वजह से tan है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कोट के अंदर। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कोट है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan है वो कैसा होता है, नेगेटिव। हम जो इधर लेफ्ट साइड में उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को असाइन करते हैं, चेंज होने के बाद क्या हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते। देखिएगा, ऐसे तो आप कह सकते हैं कि सर ये कोसेक थीटा है, ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये तो चेंज होने के बाद हुआ है। इनिशियल केस में तो क्या था, ये सेक था, सेक 90 की वजह से ही तो ये चेंज हुआ है कोसेक के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल केस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो ही क्या होता है, कंसिडर होता है, ठीक है। इधर वाले केस में चेंज होने के बाद में वो वाला कंसिडर नहीं होता है। तो ये आपका था सेकंड 90 प्लस थीटा टाइप। आई होप यू विल। अब देखिएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में, कि मैं एक दो यहाँ से न्यूमेरिकल्स करता हूँ आपको, फिर आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। यानी आपके पास मैं फर्स्ट में देता हूं साइन 150 डिग्री, क्लियर, एंड सेकंड इज tan 135 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री एंड tan 135 डिग्री, क्लियर। तो देखिएगा, आपको ओनली 90 तक की वैल्यू आपको पता है, इसके बाद की वैल्यू आपको नहीं पता है, फिर भी हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट ले रहे हैं हम साइन 150 डिग्री, क्लियर। वी कैन राइट साइन 150 एज साइन
90 plus 60. Clear? We can write sin 150 as 90 plus 60 because 150 split into 90 plus 60. Again it become 150. Clear? And we also know that sin 90 plus theta will be cos theta. Sin 90 plus theta will be cos theta and cos theta. Here theta is 60 degree. Clear? यानी sin 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है. यहाँ पर मैंने बताया था अगर 90 होगा तो ये चेंज होगा हमेशा साइन किसमें? cos के अंदर. और आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 150 है दैट एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज अप टू 180 डिग्री 90 to 180 degree value exists in the second quadrant. So here we can write as cos 60 and we know that cos 60 is 1 by 2. Clear? That is the value of a sin 150. Write down कीजिए इसको जल्दी से. हो गया होगा सभी का? अब देखिएगा सेकंड बात करते हैं हम tan 135 डिग्री. सो tan 135 कैन स्प्लिट इनटू फॉलोइंग फॉर्म एज tan 90 प्लस 45. क्लियर? यानी tan 135 को हम 90 प्लस 45 की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि 90 प्लस 45 अगेन बिकम 135. क्लियर? नाउ वी नो दैट tan 90 प्लस थीटा विल बी cot theta. tan 90 plus theta will be cot theta and we also know that in second quadrant tans in negative. In second quadrant tan is negative, only sine and cosec both are positive. Clear? So and we know that cot 45 is minus 1. Clear? So we can find value of tan 135 as minus 1. देखिए यहाँ पर आपको केवल 90 तक की वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं आप उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं स्प्लिट करके उनको. क्लियर? तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको खुद करना है उसके और आंसर आपको कमेंट करने हैं ग्रुप के अंदर विद योर नेम. बस आपको केवल आंसर कमेंट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कोस 120 डिग्री. क्लियर? सेकेंड इज कोट 150 डिग्री. ये 2 क्वेश्चन है आपको खुद से सोल्व करने हैं. कोस 120 डिग्री एंड कोट 150 डिग्री. ठीक है? इनको राइट कर लीजिए और उनके कमेंट्स आपको ग्रुप के अंदर बताने हैं. ठीक है? अब देखिए थर्ड टाइप के बारे में हम बात करते हैं. अभी तक हमने 90 प्लस थीटा पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? अब देखिएगा अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से ज़्यादा वैल्यू यानी 90 प्लस थीटा एंड वी ऑल्सो से दैट 180 माइनस थीटा. इन बोथ केसेज वी एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट. ए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दैट कंसिस्ट the value of more than 90 degree or less than 180 degree, then we can say that that trigonometry function exists in second quadrant. Clear? So third type is 180 degree minus theta type. Because 180 degree minus theta exists in the second quadrant. Clear? हेयर देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा. वी नो दैट साइन 180. वी ऑल्सो डिस्कस दैट इफ एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्रॉस द वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस देन इट ऑलवेज चेंज इन इट्स करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. बट इफ एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंटरसेक्ट horizontal line that means y axis then it never
चेंज, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर यहाँ पर अगर 90 और 270 है, उस केस में क्या हो जाएगा, वो चेंज होगा। 180 और 360 के केस में वो चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा साइन 180 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा। देखिएगा 180 की वजह से साइन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, साइन का क्या रहेगा, केवल साइन ही रहेगा। अगर ये 90 होता तो यहाँ पे कोस हो जाता। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर यहाँ पर 180 होता है, उस केस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है। आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर? इसी तरह से अगर हम बात करें कोस थीटा के बारे में, कोस 180 माइनस थीटा दैट विल बी माइनस कोस थीटा। क्लियर? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस है वो नेगेटिव होता है, और 180 होने की वजह से कोस है वो चेंज नहीं हुआ, ये सेम रहा एज ए कोस। क्लियर? नेक्स्ट tan 180 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी माइनस tan थीटा, एंड कोट 180 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट इज sec 180 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी माइनस sec थीटा, एंड लास्ट इज cosec 180 डिग्री माइनस थीटा दैट विल बी माइनस cosec थीटा, so it will be positive. In second quadrant only sine and cosec both will be positive, and we also observe that in any trigonometry function no change, ठीक है, there is no change in any trigonometry function due to 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पर 180 डिग्री होता है उस टाइम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर चेंज नहीं आता है, केवल 270 के केस में या 90 के केस में इसमें चेंज आता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए थोड़ा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसका यूज मैं बताता हूँ आपको, इसको कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको एक वैल्यू दी, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 150। आपको कोस 150 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरह से? या तो आप इसको कोस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। कोस 90 प्लस 60 में कितना होता है? 150 होता है। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोस 180 माइनस 30, ये भी 150 होता है। यानी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के केस में इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिए कोस 90 प्लस थीटा ये आपके पास होता है साइन थीटा, और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की, √3/2। ये वैल्यू आपके पास आ गई कोस 150 की। क्लियर? अगर हम इस मेथड से इसको स्प्लिट करें तो कोस 180 माइनस थीटा, आपको पता है कि 180 की वजह से कोस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोस का कोस ही रहेगा, कोस 30। और आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यानी दोनों केस में चाहे वो 90 प्लस थीटा से हो या 180 माइनस थीटा से हो, दोनों केस में आपके पास वैल्यू क्या है, सेम है। यानी इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने 180 माइनस थीटा यानी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर चुके हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ टाइप, दैट इज 180 प्लस थीटा टाइप। प्लस थीटा टाइप। ठीक है, यानी 180 से थीटा की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब देखिएगा 180 प्लस थीटा, वी नो दैट 180 प्लस थीटा एग्जिस्ट इन द थर्ड क्वाड्रेंट।
द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन more than 180 and less than 270 always exist in the third quadrant. Clear? So, and we know that in third quadrant only tan theta and its reciprocal cot theta are positive and all remaining trigonometric function are negative. So we can write as sin 180 plus theta. Due to 180 there is no change in sin theta, it remains as a sin theta, and due to third quadrant साइन बिकम नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ यू डिस्कस कोस 180 प्लस थीटा दैट विल बी माइनस कोस थीटा बिकॉज देयर विल बी नो चेंज ड्यू टू 180, सो वी कैन राइट एज tan 180 प्लस थीटा विल बी माइनस पॉजिटिव ऑफ tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट cot 180 plus theta will be plus cot theta, and sec 180 plus theta will be minus sec theta due to third quadrant, and cosec 180 plus theta will be minus cosec theta. Clear? यानी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं कि 180 के केस में चेंज होगा या नहीं होगा, 90 के केस में चेंज होगा या नहीं होगा, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और किसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा इनको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा इससे मैं एक दो न्यूमेरिकल्स बताता हूँ आपको। यहां से देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, cos 210 एंड सेकेंड वन इज tan 240। क्लियर? सो cos 210 कैन बी रिटन एज cos 180 प्लस 30। क्लियर? यानी cos 210 को हम cos 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। और आपको पता है cos 180 की जैसे cos की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos है वो नेगेटिव होता है, तो cos 30 एंड वी नो दैट cos 30 इज √3/2। क्लियर? तो माइनस ऑफ √3/2 वैल्यू किसकी होगी, cos 210। आई होप आपको आगे होगा क्लियर। ये सेकेंड हम बात करें कि tan के लिए tan 240 को हम स्प्लिट कर सकते हैं tan 180 प्लस 60। 180 प्लस 60 कितना हो गया, 240 हो गया, एंड tan 180 विल बी अगेन tan 60, क्योंकि 180 की वजह से tan में कोई चेंज नहीं होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, दैट विल बी tan 60 √3। क्लियर? दैट इज द वैल्यू ऑफ tan 240। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है किसी टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट पार्ट 180 प्लस थीटा हो गया, अब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड मोर देन 360 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। थैंक यू।